Hey, hello everyone. I am Shivam Chaturvedi and I am here to discuss the last topic of class 11th chapter number 2, that is the structure of atom. Now if you ask me why is this written already in this board, then I will answer, as far as your exam is concerned, these topics direct significance is almost zero. Why? So am I a keen person to make some videos and to present to you? No. I'm here to tell you something that these topics indirectly comes into application when we read electronic configuration of atom and when we have to find the blocks of S block, P block, D block of periodic table. Okay, the finding of blocks comes under chapter number 3 and the electronic configuration comes under chapter number 2. So these three rules are named as Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. These are used as tool for that two big topics, that is electronic configuration and finding of blocks. Okay, so here are these already written because these are written in your books already. Okay, so why should I waste my time in writing these? In fact, instead of that, I can talk to you about our plans that I have completed chapter number 3 to modern periodic table, and after that I have started this chapter number 2, that is the structure of atom. So this is our transition video from second chapter to third chapter, because second chapter's last topic is electronic configuration and third chapter's where we left, that is modern periodic table completion, and where we should start now, that is finding of blocks. Okay, so for that we need some tools, and these tools are these principles. So let's start these principles. Okay, so first is Pauli's exclusion principle. What's the statement of this? No two electrons can have the same set of four quantum numbers. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके उनके जो क्वांटम नंबर्स का सेट यानी कि जो एड्रेस होता है वो सेम नहीं हो सकता. दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर जो कि एड्रेस है, दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता. कैसे? जब हमने देखा था कि when A has borrowed some when A has borrowed 200 rupees from me, तो वो कहाँ गया था? वो गया था पहले तो किसी ने बताया था हमें कि वो मध्य प्रदेश में रहता है, फिर बताया था कि भोपाल में रहता है, फिर बताया था कि शाहपुरा में रहता है. तो शाहपुरा में रहने वाले के बाद जो हमें स्पिन क्वांटम नंबर पता चला था, उस स्पिन क्वांटम नंबर से हमने क्या जाना था कि एक ए तो ऐसा लटका है और एक ऐसा लटका है, यानी कि एक के पैर ऊपर और सिर नीचे है, दूसरे का सिर ऊपर और पैर नीचे है. ठीक है, तो अब जब एक ऑर्बिटल, हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लोग नहीं रह सकते. अब सेम ऑर्बिटल तक तो हम सेम एड्रेस लेकर जा सकते हैं कि मान लीजिए सेकंड शेल का है, उसमें से पी सब शेल का, उसमें से पी एक्स ऑर्बिटल का है. ठीक है, तीन क्वांटम नंबर हो गए सेम. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स का पता आया, जो कि चौथा क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर था, वो या तो लिखा होगा उसमें s इक्वल्स टू +1/2 या फिर लिखा होगा s इक्वल्स टू -1/2. यदि -1/2 है, that is anti-clockwise rotation of electron, and if it is written as +1/2, that is showing it is rotating in clockwise direction. Okay, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो प्रकार के हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस निकालेंगे, अभी आपको यदि ना मैं जो इतनी बातें कर रहा हूँ यदि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक्स देखेंगे, तब हम आपको फर्स्ट नंबर यानी कि हाइड्रोजन से लेकर 30 नंबर यानी कि जिंक तक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारे के कॉन्फ़िगरेशन भी कराएंगे और सारे का हम फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक्स भी करा देंगे, जो कि हमारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं. इसलिए यदि आपको ये वीडियो समझ में ना आए, मेरी बातें समझ में ना आए, तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है. देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट. ओके, तो जब हम क्वांटम नंबर्स अपने निकालेंगे तो n
एल एम, ये तो सेम हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के। मान लीजिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स का पता दे दिया गया, तो उसका शेल नंबर, एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन जब वो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं तो या तो वो s इक्वल्स टू प्लस 1/2 रहेंगे या फिर माइनस 1/2 रहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, यानी कि या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पता होता है वो सेम नहीं होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे ना तो ऐसा भरेंगे कि जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक है तो ऐसा भरा ऐसा भरा। अब ये हो गया, अब आपसे किसी ने कह दिया कि एस ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो या तो उसका पता ये वाला बताएंगे वो, तो एस इक्वल्स टू प्लस 1/2 लिखेंगे, या फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन का पता बताएंगे तो एस इक्वल्स टू माइनस 1/2 लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि उसने एस इक्वल्स टू माइनस 1/2 लिखा तो आप उसके पते को इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी पता मान लें, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन का पता सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई? नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे भी नहीं हुई थी पहली बार में। दूसरा क्या है हमारा, ऑफ बाउस प्रिंसिपल। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर चिंता इसलिए भी नहीं करनी है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने नहीं वाला है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये नहीं आएगा, आपके में आएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट, फलाना एलिमेंट, एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट, ऐसा आएगा। ठीक है। दूसरा है हमारा ऑफ बाउस प्रिंसिपल। क्या है इसकी डेफिनेशन है, यानी जो स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये जो ऑफ बाउस है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये हमारा जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, जर्मनी का, जिसका अर्थ होता है, हमारा मीनिंग होती है कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आप दिमाग से अपने निकाल दें कि ये किसी साइंटिस्ट ने दिया था। ऑफ बाउस किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। तो ये क्या कहता है ऑफ बाउस प्रिंसिपल? ऑफ बाउस प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एनर्जी क्या है? देखिए, जो हमारे शेल घूम रहे थे, जब शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो जहां से वो घूम रहा था वो उसकी एनर्जी थी, और जहां से वो घूम रहा था उसी जगह को उसका शेल कह देते थे। अब आपको ये जितनी भी जो पहली बार इस वीडियो में आया है तो उसको लग रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पर देख के समझा रहा हूँ, बोर्ड में समझा दूँ इससे बेहतर। तो मैं इससे बेहतर बोर्ड में अब इसलिए नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि जब हमने एनर्जी का डेरिवेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने डेरिवेशन के साथ साथ में जो न्यूमेरिकल भी पढ़े थे, और एक एक करके जो -13.6 फिर 10.2 उसमें प्लस करके -3.4 किया था, तो वहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप हमारा जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसकी एनर्जी वाला वीडियो देख सकते हैं इसके पहले, उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अलग अलग एनर्जी का क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आई, कुछ निश्चित एनर्जी वो उसने गेन की, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की, और उस एनर्जी को गेन करके वो रोटेट करने लगा। ठीक है, कैसे रोटेट करने लगा? वेव की फॉर्म में रोटेट करने लगा। जब वेव की फॉर्म में रोटेट करने लगा वो, तो क्या हुआ वहां पर कि जहां से वो रोटेट कर रहा था, जिस जगह से घूम रहा था, उस जगह को हमने शेल कह दिया। तो शेल के पास क्या हुई? अब शेल के पास कुछ एनर्जी होल्ड हो गई। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैं जहां से घूम रहा हूँ तो उस रास्ते को मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ से इतनी एनर्जी वाले लोग निकल सकते हैं। तो उस शेल की एनर्जी बता सकता हूँ ना मैं कि इस शेल में इस इलेक्ट्रॉन की जो इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए इस शेल को, यानी कि इस रास्ते को हम ऐसा ऊपर बोर्ड टांग के रख देंगे कि हाँ भैया 10 जूल की एनर्जी वाले यहाँ से घूमे, इस रास्ते की एनर्जी 10 जूल है। ठीक है, अब 10 जूल के बाद जो और आगे बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे, शेल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब माइनस से प्लस हो रही है, माइनस से कम माइनस हो रही है, -13.6 से -3.4 हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस जब भी घटता है तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, -13.6 और -3.4 में कौन बड़ा? -3.4 बड़ा है। तो अब आता है हमारा n+l रूल, यानी कि अफबाउ रूल, जो ये कहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके कुछ क्वांटम नंबर यानी कि एड्रेस बताया गया है, उसमें उसकी कुछ n की वैल्यू होगी और कुछ l की वैल्यू होगी। जब n और l की वैल्यू दोनों हम जोड़ देंगे, n की वैल्यू और l की वैल्यू जब हम दोनों जोड़ लेंगे तो जिसकी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि मान लीजिए कि पहला शेल भर गया, पहले शेल में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। दूसरे शेल में कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। तीसरे में 18 और चौथे में 32 रहते हैं। तो पहले शेल में मान लीजिए आए, 2 भर गए। अब जो तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉन, जो तीसरा आएगा वो दूसरे शेल में जाएगा। देखिए, हमने ये कैसे लिख दिया कि पहले शेल के पास कौन सा सब शेल होता था? जो शेल नंबर उसके पास उतने ही सब शेल। पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जिसके शेल, जो शेल नंबर है उसके पास उतने ही सब शेल होंगे। पहले शेल के पास एक सब शेल, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 3 और चौथे के पास 4।
सब शेल के नाम क्या क्या हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। अब हमने इनको ऐसे सजा दिया, मान लीजिए पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक है। हमने ऊपर से नीचे सजा दिया इनको। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से ऐसे नीचे ही तो आएगा ना। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर भागेगा तो पहला शेल पहले मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। उसके अंदर कुछ सब शेल्स भी होंगे जिसको हमने सजा दिया। अब इनमें से हम n प्लस एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, आपको बताते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म होने के बाद अगली वीडियो में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा है कि S, P, D और F इनके लिए जो L की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 4। ये हमने आपको निकालना भी बताया था। तो L की वैल्यू आ गई और N की वैल्यू तो ये दी गई है, ये 1 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4, ठीक है। तो जो N प्लस L की वैल्यू जिसकी जितनी आएगी उसको हम उसी हिसाब से सजा देंगे। 1s 1 प्लस 0 1, N प्लस L निकाल रहा हूँ मैं, N प्लस L, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, ठीक है। पहले शेल के पास कितने सब शेल, केवल S, तो इसकी कितनी होगी N प्लस L, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2s के लिए N प्लस L कितना होगा, 2 प्लस 0 2, 2p के लिए कितना होगा, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3s के लिए कितना होगा, 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 3 प्लस d 2 इक्वल्स टू 5। ऐसे ही चौथे के लिए 4s 4p 4d एंड 4f। अब हमने जब इसको सजाया तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बताइए कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा ये 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर उससे ज़्यादा क्या 3p में, फिर 3s में, फिर कहाँ जाएगा 3p में, और फिर अब देखिए यहाँ पर है अब खेल। अब 3p के बाद में वो कहाँ जा रहा है, 4s में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि 3d की जो वैल्यू है, 3d की जो वैल्यू है और 4s की वैल्यू, n प्लस l इसके लिए कितना है, n इक्वल्स टू 3 एंड d l इक्वल्स टू 2, इसके लिए n इक्वल्स टू 4 एंड s इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एंड 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो छोटा कौन है, यानी कि एनर्जी किसके पास कम है, 4s के पास है भैया कम एनर्जी, तो 4s में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 4s में पहले चला गया इलेक्ट्रॉन, बाद में 4p में गया, फिर गया 3d में, ऐसा। 3d की वैल्यू कितनी है, 3d की वैल्यू कहाँ है, 3d की वैल्यू है 1 2 3, 3d की वैल्यू है 5। तो 3d में बाद में जाएगा, 4s में पहले चला जाएगा, फिर जाएगा 4p में और फिर जाएगा 4d में। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप ऐसे ऊपर से नीचे लगाएंगे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, उसके अंदर जितने सब सेल हैं उनको लेफ्ट से राइट में अरेंज कर दीजिए। S पहले के पास केवल S, दूसरे के पास SP, तीसरे के पास SP D, चौथे के पास SP D F, और फिर उनको कैसे बिंगो बना दीजिए उनका, ऐसा। ये तो याद करने के लिए ट्रिक है, रटने वाली बात है। बाकी यदि n प्लस एल रूल आपको समझ में आ गया है ना यहाँ पर कि सबका n प्लस एल निकालेंगे, अब कुछ कंफ्यूजन आएगी। कैसी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भैया ऐसी कि इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, यानी कि 4s भी 4 है और 3p भी 4 है। लास्ट कंफ्यूजन जो इससे उठती है वो ये है कि n प्लस एल रूल में आप मान लीजिए कि n प्लस एल आपने देखा दोनों की वैल्यू 4 4 आ गई, दोनों का n प्लस एल बराबर है। तो जब n प्लस एल बराबर होगा तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो व्हेन n प्लस एल इज सेम वी will prioritize n, यानी कि जिसका n छोटा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल इंटर इन दैट शेल। देखिए 4 और 3 किसका छोटा है, n 3, तो पहले कहाँ गया 3p में, फिर आया अपना 4s में, तो इलेक्ट्रॉन वहां से ऐसा आ रहा है 1s। तो अब द फाइनल हम बताएंगे, तो अब इस पूरे को मिटाकर हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन जाना कैसे कैसे है। धीरे धीरे फिर ये टूल्स जब हम सीख जाएंगे ना, तो फिर टूल्स सीखने के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखने लगेंगे। तो सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में,
फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 3p में, 2p में, फिर जाएगा किसमें 2p के बाद में 3s में। हमें कहाँ से आना है, ऐसे गिरना है, ऐसे, यानी कि लेफ्ट राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ, टॉप से बॉटम आना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हमें ऐसे आना है। ठीक है, जो पहले ऐसे मिलता जाएगा हम उसको देते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बनाना है हमें। और बाउक प्रिंसिपल में बहुत कुछ है यार याद करने के लिए, वैसे मैं सोच रहा था छोटा सा है। 3s के बाद क्या है अपना, 3s के बाद आएगा हमारा 3p, फिर आएगा 4s, फिर 4s के बाद क्या 3d, फिर क्या 4p, और फिर 4d, और फिर 4f। तो हमारा यहीं तक वैसे काम हो जाता है 4p तक। इसके आगे आपको 12th क्लास में मिलेगा जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें पता है कि किसके पास कितने कितने शब्द शेल हैं, कितने कितने हैं भैया। देखिए एस ब्लॉक के पास कितने शब्द शेल हैं, एक शब्द शेल है। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एस ब्लॉक तो स्वयं एक शब्द शेल है। एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं, एक। एस ऑर्बिटल, एस पी डी और एफ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो m की वैल्यू हमने निकाली थी ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s के पास कितना था, एक। p के पास कितने थे, तीन, -1 0 1। d के पास कितने थे, -2 -1 0 1 2 यानी 5। और f के पास कितने थे, 7, -3 से लेके +3 तक। अब हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन में, ओ सॉरी, एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दो। एक सीधा खड़ा हो सकता है, एक उल्टा खड़ा हो सकता है, एक ऐसा लटक सकता है, एक ऐसा लटक सकता है। तो जब ऐसे ऐसे लटक सकते हैं, एक ऑर्बिटल में दो लोग जा सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल हैं उनका गुणा कर दो 2 से, यानी कि उस सब शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इज इट क्लियर। तो पहला एक ऑर्बिटल गुणे 2 बराबर 2, 3 गुणे 2 बराबर 6, 5 गुणे 2 बराबर 10, और 7 गुणे 2 बराबर 14। 2 6 10 एंड 14। पी ब्लॉक, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एस में 2, डी में 10 और एफ में 14। यानी कि एस के पास मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, पी के पास मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, और डी के पास मैक्सिमम 10 रह सकते हैं। ठीक है, अब इससे 1 से 6 हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 हो सकते हैं। जब हम ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे और बेहतर तरीके से। अभी आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ तक आ गया समझ में कि कौन सा ऑफ प्रिंसिपल कैसे है। देखिए सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक सीधा जाएगा एक उल्टा जाएगा। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनमें से एक सीधा खड़ा होगा एक उल्टा खड़ा होगा। ठीक है, दूसरा ऑफ प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैसे, चलो भाई भेज दिया हमने पॉली एक्सक्लूजन से कि एक सीधा एक उल्टा खड़ा होगा, पर जाएंगे कैसे, जाएंगे ऐसे कि जो इनका n+l रूल लगाएंगे हम, उनका n+l रूल लगाएंगे शेल और सब शेल वाला। शेल प्लस सब शेल की जो वैल्यू है एल की और एन की वैल्यू है जो शेल की, उनको हम जोड़ देंगे, और जो भी जितनी कम वैल्यू आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। यदि एन और एल बराबर हैं तो एन जिसका छोटा होगा उसके पास जाएगा। ठीक है, और ये समझ लिया हमने कि एक ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और सारे सबसेल्स में हमने ऑर्बिटल्स के नंबर निकाल लिए, उनका गुणा कर दिया 2 से, तो 2 6 10 एंड 14, 2 इन सब शेल एस, 6 इन सब शेल पी, 10 इन सब शेल डी एंड 14 इन सब शेल एफ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा लास्ट रूल है वो है हमारा हुंड रूल। तो हुंड रूल हमारा क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज पेयर्ड only when orbitals of that subshell is half filled with parallel spin। काफी लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, कुछ नहीं है ये। एक s ऑर्बिटल है, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। p से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। p ऑर्बिटल है जैसे, और एक ये हमारा s है, 1s। अरे यार किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन ही करा देता हूं मैं। मान लीजिए कि कार्बन लिखा है, कार्बन 6, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन के पास कितने 4 है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, हमने आपको बताया था कि इनको हम कैसे भरेंगे ऑफ बाउ से। पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, ऐसा कुछ होगा। अब जहां तक भरेंगे देखते हैं कहां तक भरते हैं।
तो एस में कितने भरना है, मैक्सिमम 2, फिर एस में कितने भरना है, 2 2 तो 4 हो गए। 2p में, p में कितने भरना है हमें, 2 ही भर सकते हैं भाई, अब कितने टोटल 6 है ना, तो यहाँ पर अब 2 ही भरेंगे। तो ये हमारे एस में भरना है, 2 इसमें भरना है और इसमें भरना है, ठीक है। तो अभी ये कैसे होगा काम, काम होगा ऐसे कि एस हमारा बनाया हमने 1s, ये बनाया हमने 2s, और p के पास कितने होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले में भरे हमने 2, दूसरी में भरे 2। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज पेयर्ड ओनली व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सबशेल इज हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड हुआ तो इसको हम फुलफिल कर सकते हैं, ये हाफ फिल्ड हुआ तो इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हुआ, जब ये पूरा हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगा, ये और ये ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। अब ये ऑर्बिटल तो पूरा है ना भाई, ये पूरा ऑर्बिटल है ना p का, ठीक है। तो जब तक उस एक सबशेल के भीतर के, सबशेल क्या है, एस सबशेल पी सबशेल, एक सबशेल के भीतर के, एक सबशेल के अंदर के, जब तक क्या है कि 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें से जब तीनों ऑर्बिटल जब तक हाफ पेयर्ड यानी कि पैरेलल स्पिन वाले नहीं आ जाते, तब तक हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम कि उसको मान लीजिए कि 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये क्या कह रहा है, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सबसेल, ऑर्बिटल्स ऑफ दैट सबसेल यानी कि 1 2 3, दैट सबसेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। जब तक कि ये और ये नहीं आ जाते, तब तक हम इसका ये नहीं करेंगे, यानी कि इसकी जोड़ी नहीं बनाएंगे, बगल वाले को उल्टा नहीं लटकाएंगे। क्यों, क्योंकि ये इनकी आदत रहती है सबशेल और ऑर्बिटल्स की, कि जब तक इनका पैरेलल स्पिन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये हम क्या करते हैं, पेयर्ड नहीं होते। पहले तो भाई वो यही देखेंगे ना कि यार जब जगह है और दूसरी जगह है, तो तुम दूसरे घर में जाके बैठो, मेरे बगल में ही क्यों बैठना है, मुझे ऐसा घूमना है, तुम्हें ऐसा घूमना है। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर कहेंगे कि चलो कोऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने भरना है, यहाँ पे भरना है हमें 2 लोगों को भरना है और 3 जगह है खाली। तो हम लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं बनता, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन क्या है कि हम दूसरे में भी पैरेलल स्पिन बना दें इसका इलेक्ट्रॉन का, ये सही है, दिस इज राइट। तो क्या है हमारा कि जब तक ये तीनों सीधे सीधे नहीं हो जाएंगे, यानी कि तीनों पैरेलल स्पिन की नहीं, यानी कि अनपेयर्ड तीनों के पास मान लीजिए सीधे सीधे को हम नहीं लटका देंगे, तब तक उल्टे वाले को नहीं लटका सकते। या फिर हम ऐसा कर दें कि उल्टा पहले लटका दें, तो दूसरे में भी हमें उल्टा ही लटकाना पड़ेगा, पैरेलल स्पिन लेकर आना पड़ेगा हमें। तो दूसरा भी कहेगा दूसरे घर में भी बैठोगे तो मेरे ही जैसा काम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं इस घर में बैठा हूँ और आप अगले घर में जाके सीधे खड़े हो गए, नहीं है, मैं उल्टा तो आप उल्टे, मैं सीधा तो आप सीधे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन बोलता है इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ये बुलवाता कौन है, ये हुंड रूल बुलवाता है। अब हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ब्लॉक फाइंडिंग कैसे होती है। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, थैंक यू सो मच।